Good morning students and welcome to our e-learning session initiated by Shri Gyan Manjari Vidyapit. Today we are on lecture number 3 for chapter number 10, that is the organs of government. Before I start a new topic, new content, first of all, again I am requesting you all, please pay your attention, and this is the one of the most important chapter, not only for your exam purpose but for your future study as well as your future life. One of the most important, it is a lengthy one, but as it is having the very important concepts, the idea that what we should have. So in all sense you have to be very much careful. Please read the book, go through with the material, as it is very important. So we have discussed about the 3 organs of our government. So we know there are 3 organs of our government, that is legislature, executive and judiciary. Legislative council, what its work? To frame the law. Okay, कायदा बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, उस कायदे को अमल करना, टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, इट इज अ वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव. एंड जुडिशियली, टू मेंटेन द लॉ एंड order in the country, it is a work of judicially. So all 3 organ have power but it can't work independently. Okay, तीनों का महत्व है, तीनों पावर भी है तीनों के पास, but they are interdependent. Okay, and check and balance is there. एग्जीक्यूटिव पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर पे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी पर executive and legislature. So this all point what we have discussed. Then one of the very important point about the parliament, that what we talk. So the principle of division of the power. पावर है वो तीनों को अलग अलग प्रकार से पावर है, पर वो पावर भी अल्टीमेट पावर नहीं है. There is a check and control. Okay. So legislature, as India is a democratic country, republic country, so parliament, supreme apex institute है. When we use the word parliament, it means Rajya Sabha, Lok Sabha and president. This what you will keep in mind. Then about the assembly, legislative assembly, we know there are 2 types. Central level पे राज्य सभा पार्लियामेंट है, जिसमें राज्य सभा, लोक सभा और प्रेसिडेंट को हम गिनेंगे. स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली. सो एट द स्टेट लेवल 2 टाइप वहां पे हैं, आइदर इट इज यूनिकैमरियल और द बायकैमरियल. यूनिकैमरियल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल स्टेट विल हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट द बायकैमरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. 6 स्टेट, भारत के 6 ऐसे स्टेट है जैसे जहां पे बायकैमरियल है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. 3 स्टेट्स के नाम दिए हैं आपके बुक में, दैट इज बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. वी विल ऐड 3 मोर, सो ऑल टुगेदर 6 नेम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना. ये हमने याद किया था, जो हमें समझना भी है. देन वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज द पार्लियामेंट. एट द सेंट्रल लेवल जो लेजिस्लेटिव है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट. Parliament, again I am telling you, parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha, president, vice president. Okay, so first and the most important house what we have learned, it was the Lok Sabha. Lok Sabha, lower house, house of the people. So Lok Sabha याद रखने वाली चीज है, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर. लोक सभा के मेंबर कौन होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड people will be the member of Lok Sabha. Total number of seat 545. 545 total number of seats. उसमें से 543 election हो गए और 2 seat will be nominated और Anglo-Indian हो गए, will be nominated by the president. Then Lok Sabha can dissolve. हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट उसको बाय
उसकी सत्ता के अधीन उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बिफोर एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर के लिए. दिस पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस, who can be the member of Lok Sabha. So the person the age of 25 and more, he must be the citizen, he or she must be the citizen of the India. साउंड माइंड का होना चाहिए, कोई क्रिमिनल उसके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए, या तो क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या तो गवर्नमेंट बेनिफिट उसको ना मिल रहे हो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के. सो दिस ऑल आर द क्राइटेरिया दैट व्हाट वी हैव डिस्कस. देन वी टॉक अबाउट द कोरम. कोरम मतलब टोटल नंबर प्रेजेंट कितने हैं. सो वी नो कोरम इज ऑफ 110, टोटल स्ट्रेंथ के 1/10. सो टोटल स्ट्रेंथ है 545. सो मिनिमम रिक्वायर प्रेजेंस इज 55 मेंबर्स, तभी सेशन होते हैं. Then qualification and member of राज्य सभा. Then we talk about the राज्य सभा. तो राज्य सभा का मेंबर कौन होगा, हर एक स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर में से. सो इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम कहेंगे, टोटल सीट 250. आउट ऑफ 250, 238 will be elected and 12 will be nominated by the president. राज्यसभा का मेंबर कौन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें से 238 इलेक्शन होगा और 12 जो होंगे दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. अनदर पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस, सेशन, पार्लियामेंट का काम 3 साल में 3 बार मिलता है जिसको हम कहेंगे सेशन. फर्स्ट इज अ बजट सेशन. बजट जिस महीने में, वैसे फरवरी में हर साल होता है, so that is the budget session, winter session and monsoon session. 3 time वो लोग मिलते हैं. Then we talk about the speaker of the Lok Sabha. So that is the person who preside and control the Lok Sabha. उनकी responsibility है to maintain the dignity of Lok Sabha. Who can be the chair, who can be the speaker of Lok Sabha? सो एनी पार्टी के कोई भी व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बन सकता है. बट आफ्टर द बिकम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो फ्रीली जज करे, कोई पार्शियलिटी ना हो, कंट्रोल करे एंड डिग्निटी मेंटेन करे. कास्टिंग वोट की हमने बात की थी. कास्टिंग वोट मीन्स व्हाट, इन एनी सिचुएशन, इन एनी डिबेट, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, व्हेन द पॉजिटिव और मतलब डू और डोंट 50-50 जब वोटिंग होता है कोई एक डिबेट या डिस्कशन में, सो एट दैट टाइम स्पीकर कैन कास्ट हिज और हर वोट. जब 50-50 की सिचुएशन होती है तो स्पीकर अपना वोट देते हैं जिसको कास्टिंग द वोट कहा जाता है. इन अदर स्पीकर कैन नॉट वोट. देन दिस पॉइंट, ऑल पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस. सो आज जो हम बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट. व्हेन बिल, when can a bill become an act? कोई भी बिल कायदा कब बनता है? बिल मतलब प्रपोजल. लेजिस्लेचर का काम क्या है? कायदा बनाना, कायदों में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मॉडिफाई करना. सो कायदा मतलब जब कोई प्रपोजल करता है कि कोई विचारधारा रखता है, विचार रखता है, उसको कहा जाता है प्रपोजल. सो द प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल. नाउ इफ समवन आस्क व्हाट इज अ बिल, बिल मतलब हम ऑफिस, दुकानों में, होटल में बिल देते हैं, उसको बिल, पैसा कितना चुकाना है, नो. बट व्हाट इज अ बिल? A proposal is called bill. बिल मतलब क्या? प्रपोजल.
कोई प्रपोजल रखना, कोई चेंजेस के लिए सुधार देना, कोई सुझाव देना, प्रपोज करना, कोई सुझाव देना, कोई चेंजेस के लिए बात रखनी, लोकसभा या राज्यसभा या तो पार्लियामेंट के अंदर जब हम अपनी बात रखते हैं, कोई सुझाव रखते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, चेंजेस के लिए, नलिफाइंग करने के लिए, तो उसको कहा जाता है प्रपोजल और उसी को कहा जाता है बिल. So a proposal is called a bill. This is a one word answer. Fill in the blanks, true or false. उसमें आपको याद रखना है. So what is a proposal? A proposal is called a bill. So the parliament does the important work of augmenting the old laws. Augmenting मतलब बढ़ाना, किसी कायदे को चालू रखना, उसमें कोई एडिशन करना. Augmenting the old laws. Framing मतलब उसके अंदर संशोधन करना, कुछ नया करना, संशोधन करना. फ्रेमिंग द न्यू लॉज एंड नलिफाइंग एब्सोल्यूट लॉ, या तो किसी कायदे को हटाना. लेजिस्लेचर में क्या काम होता है? किसी कायदे में बढ़ाना, बढ़ोतरी करना, उसमें कोई सुधार करना, या तो कोई कायदे को एब्सोल्यूट मिटा देना, नलिफाइंग करना. ये तीनों ऊपर काम कहां पे होता है? लेजिस्लेटर. कौन सा कायदा? देश के विकास के लिए, देश के जो कायदे हैं उसमें सुधार करना, जहां पर जरूरत हो उसमें एडिशन करना, घटाने की जरूरत हो वहां पे घटाना, या तो नलिफाइंग करना या तो एब्सोल्यूट उसको नलिफाइंग कर देने का काम कहां पे होता है? लेजिस्लेचर में. सो एनी ऑफ द बिल, आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल ऑफ अमेंड, संशोधन पारित करना, कोई भी बिल, कोई भी प्रकार का बिल, Constitution can become an act by passing through the following process. अब प्रपोजल तो रख दी, कोई एक मेंबर ने ये प्रपोजल रख दी, पर उसकी प्रोसेस, बिल कायदा कैसे बनेगा? हाउ दैट बिल बिकम द एक्ट? तो सर्टन इसकी एक प्रोसीजर होती है. जैसे इफ आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैंने कोई प्रपोजल रखी, इफ आई इंट्रोड्यूस एनी बिल, When it become the act, वो कायदा कब बनेगा? तो उसकी एक पूरी प्रोसीजर है. आफ्टर द फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर होता है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसीजर, एनी बिल कैन बिकम द एक्ट. कोई भी प्रपोजल तब जाके कायदा बनता है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. कौन सी प्रोसीजर से बिल या तो प्रपोजल कैन बी बिकम द एक्ट. So the bill can be presented by the minister of any member of the parliament. अब बिल को प्रपोज कौन कर सकता है? कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मेंबर. ओके, सो बिल कैन बी प्रेजेंट बाय मिनिस्टर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. If any dispute arise between the two houses of the parliament regarding any bill, the president can call a joint sitting of both the house of the parliament. अब कोई मंत्री कोई भी हाउस का है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है, दे कैन इंट्रोड्यूस द बिल. अब बिल के ऊपर अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है, मिसमैच होता है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं. ज्वाइंट सेशन मतलब व्हाट? राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को एक साथ बिठाना. राज्यसभा, लोकसभा, जैसे कोई एक प्रपोजल है, लोकसभा में सब ओके हो गया, प्रपोजल उसकी फाइन हो गई, बट राज्यसभा में कहीं पे डिस्प्यूट हुआ, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? राज्यसभा एंड लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा विल सिट टुगेदर एंड विल डिस्कस ऑन दैट मैटर. द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर. और लोकसभा के जो स्पीकर है वो उसको प्रिसाइड करते हैं. ज्वाइंट सेशन में कौन उसको टेक केयर करेगा? चेयर्ड बाय द स्पीकर. स्पीकर कहाँ के हैं? लोकसभा के. भले ही सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठे हैं, बट इट विल चेयर बाय द स्पीकर. ओके, एंड वेयर द बिल कैन बी पास बाय द मेजोरिटी. और ऐसे कोई भी सेशन के अंदर जहां पे ज्वाइंट सेशन है, तो मेजोरिटी जो डिसीजन आएगा उसी को माना जाएगा. सो द वेयर द बिल कैन बी पास बाय द मेजोरिटी, एंड देन द बिल बिकम द एक्ट इफ इट इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस. कोई भी प्रपोजल, कोई भी बिल कायदा तभी बनता है जब राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी से वो पास हो जाए.
अगर कोई भी प्रपोजल में डिस्प्यूट है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन को चेयर कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड द बिल, द प्रपोजल विल बिकम द एक्ट व्हेन इट विल पास बाय द मेजोरिटी। कायदा तभी बनता है जब मेजोरिटी से वो प्रपोजल या तो वो बिल पास हो जाए। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट? व्हेन कैन अ बिल, सबसे पहले हमने क्या समझा? बिल मतलब प्रपोजल इज कॉल्ड द बिल। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? सो लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम द बिल। Students, please pay your attention. It is one of the important content what we are discussing. Lifetime आपको ये help out होगा. Procedure. Procedure of an act. Procedure of an act from bill ordinary, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Ordinary bill from bill to ordinary bill. So what is the procedure? क्या सेंटेंस है? Procedure of an act from bill ordinary bill. Okay? So let's talk about the procedure. See, line to line आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी as it is very important. See, the procedure of presenting a bill in the house of the parliament by minister is called the first reading of the bill. 3 reading हमने आगे भी सुना था, समझा था, 3 reading होते हैं। So first reading कब होता है? When any member propose the bill, उसको क्या कहा जाता है? first reading. So what is the first step? The first reading of the bill कब है? A bill in the house of parliament by minister, when the procedure of presenting a bill in the parliament is the first step or the first step what we can say. So presenting bill in parliament, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। 3 बार रीडिंग होगा। कायदा कैसे बनेगा? पहले सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। सो प्रेजेंटिंग बिल इज द फर्स्ट रीडिंग, उसको कहा जाएगा। अ बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग। इसको क्या कहा जाता है? ये है फर्स्ट रीडिंग। क्या हुआ? ये फर्स्ट रीडिंग। टोटल रीडिंग कितने हो गए? 3। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग किसको कहा जाता है? प्रेजेंटिंग बिल इन पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रपोजल रखी जाती है, कोई बिल रखा जाता है, उसको कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग। ओके? नाउ व्हेन इन द टाइटल, ऑब्जेक्टिव एंड द रीजन ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब। अब प्रपोजल रखी जाती है तो कौन सी बात है, कौन सी प्रपोजल है, उसका टाइटल, उसका ऑब्जेक्टिव, द रीजन फॉर दिस प्रपोजल एंड एवरीथिंग विल बी लाइक लोगों को समझाया जाता है, मेंबर को। एंड रीजन ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब किया जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस प्रपोजल इज गिवन एंड सो ऑन। एंड बिल इन द स्टेट, see the describe before presenting any bill in the state legislative assembly, the recommendation of the chairman of the house, and before presenting any bill in the center, the recommendation of president is required. कोई भी बिल प्रस्तुत करने से पहले, चाहे वो विधानसभा में हो तो चेयरमैन का, या तो पार्लियामेंट में हो तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है।
So in the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon. Objection must be with the reason and voting is done if necessary. पहले बिल में सिर्फ एक बार समझाया जाता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर. सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के पास से उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है प्रपोजल के बारे में. फर्स्ट रीडिंग में मिनिस्टर उसका ऑब्जेक्टिव, रीजन ऑफ द प्रपोजल एंड एवरीथिंग फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ समझाया जाता है. और कोई डिस्कशन या तो कोई क्वेरीज है तो उसको अभी इतना वोटिंग भी इफ इट इज नेसेसरी तो ही किया जाता है. सो फर्स्ट रीडिंग इज अ लाइक इंट्रोडक्टरी होता है. सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इज रिपल्शन, मतलब नतीजों के लिए आर एग्जामिन्ड amendment and done in on the basis of public group association institution on opinion of the opposition party. Voting is carried out that. अब इसके अंदर क्या होगा, सेक्शन वाइज डिस्कशन. सेकंड के अंदर सेक्शन वाइज डिस्कशन होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगी फॉर एवरी पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिपेक्शन दैट इज नतीजों आर उसको एग्जामिन किया जाएगा कि प्रपोजल अगर वो कायदा बनता है तो उसके फायदे, उसके नुकसान क्या होगी, उसकी असर क्या होगी, एवरीथिंग वेरी डीपली कॉन्शियसली उसको डिस्कस एंड डिबेट की जाती है उसके ऊपर. एंड अमेंडमेंट आर डन इन इट ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक ग्रुप एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी. वोटिंग इज कैरिड आउट ऑन दैट. और दूसरे स्टेज में डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाती है, ऑपोजिशन से बात होती है और फिर उसमें वोटिंग की जाती है. So sometime due to the workload and the House bill cannot be discussed in detail, therefore in handed over to the committee comprised of the subject expert and embracing members having the special knowledge to examine the bill. Now sometime ऐसा होता है कि अंदर इतना काम होता है पार्लियामेंट के अंदर, सो सभी मेंबर इतना टाइम लेके डिस्कशन नहीं कर सकते कोई प्रपोजल पे. सो इट मे हैपन दिस प्रपोजल इज सेंट टू द कमिटी. कमिटी में कौन मेंबर होते हैं, दोस हु आर द एक्सपर्ट्स, दोस हु आर हैविंग द गुड नॉलेज इन पर्टिकुलर एरिया क्राइटेरिया के, जिसके बहुत सारे नॉलेज है. ऐसी एक कमिटी बनाई जाती है जो ये बिल के ऊपर रीड करती है, बिल के ऊपर पूरा ध्यान देती है, उसकी प्रपोजल क्या है, प्लस माइनस जो भी है, that will be looked after by the committee. So sometime due to the workload of the House, a bill cannot be discussed in the detail. So therefore it is handed over to the committee comprised of the subject experts and member having the special knowledge to examine the bill. So then keeping in view the public opinion, they undergo the necessary discussion and suggest required changes therein. The report of committee is submitted to the House, then the bill is sent for the third reading. So second stage में क्या है, second reading में क्या होगा, second reading में क्या किया यहाँ पे, second reading में voting होगा, discussion होगी, पूरी चीजें सब डिस्कस की जाएगी. सेकेंड रीडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग होता है, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ प्रेजेंटिंग होता है, बट वोटिंग, डिस्कशन, चेंजेस, कमिटी बनाने की जरूरत है तो कमिटीज को बनाई जाती है, एक्सपर्टीज की राय ली जाती है, डीप डिस्कशन यहां पे सेकेंड स्टेज में होता है. तो सेक्शन वाइज डिस्कशन भी होगा. सो सेक्शन वाइज डिस्कशन सेकेंड रीडिंग में होगा और सेकेंड रीडिंग को ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है. नाउ समटाइम ड्यू टू लेक एंड ओवरलोड कमिटी भी बनाई जाती है. कमिटी ने जो सजेशन दिए, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सजेशन विच इज गिवन बाय द एक्सपर्ट कमिटी, तो वो उसमें चेंज भी किए जाते हैं इन द सेकेंड रीडिंग. एंड समटाइम एंड द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल. अब तीसरी रीडिंग क्या है, थर्ड रीडिंग क्या है, इट्स जस्ट अ फॉर्मल.
एक कहने के लिए उसमें बातचीत होती है. इट्स जस्ट अ फॉर्मल रीडिंग. इट्स अ फॉर्मल रीडिंग. थर्ड रीडिंग क्या है? फॉर्मल. इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड. जो भी चेंज, सुधार, वधार, वोटिंग जो भी है वो सेकंड सेक्शन में, सेकंड रीडिंग में हो जाती है. फर्स्ट में क्या होता है? सिर्फ प्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट, ऑब्जेक्टिव, रीजन, ये सब मंत्री बता देते हैं. सेकंड सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है, जिसमें वोटिंग होती है, चेंजेस करने की जो भी होती है कमेटी के द्वारा, या तो इफ इट इज डिस्कशन से लेके सब कुछ. कहां पे चेंजेस होगा? इन सेकेंड रीडिंग. सो सेकेंड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड फॉर्मल रीडिंग, थर्ड रीडिंग है वो फॉर्मल रीडिंग है. एक प्रोसीजर के पार्ट के रूप में सिर्फ थर्ड रीडिंग होता है. सो द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल. After presenting the logic in the term of acceptance and rejection of the change in the bill, voting is carried out. If with the gain majority, then the bill is declared pass. अब वोटिंग के दरमियान अगर मेजोरिटी से वो सैंक्शन हो गया तो उसको पास माना जाता है. अगर लोग मेंबर्स उसके खिलाफ है तो उसको पास नहीं माना जाएगा, या तो उसको संशोधन करना पड़ता है. So voting is carried out. If the gain majority, then the bill declared the pass. The pass bill is signed by the chairman of the first house. जिसमें वो बिल रजू हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, उसकी चेयरमैन की साइन करवाई जाती है बिल के ऊपर. So this bill is signed by the chairman of the first house. Then it is sent to the second house. अब जैसे लोकसभा में एक बिल प्रपोज हुआ, एग्जाम्पल समझो. लोकसभा में एक बिल प्रपोज हुआ, अब वो बिल लोकसभा में पास हो गया. देन दिस बिल, पास बिल विल बी साइन बाय द चेयरमैन, और वो बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है. राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. वहां से वो मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो राज्यसभा के चेयरमैन उसको साइन करके देंगे, या तो स्पीकर उसको साइन करके देंगे. So, if the bill passes the second house with the necessary amendment, it is sent to the president signature. दोनों हाउस में से अगर बिल पास हो जाता है तो फाइनली किसके पास भेजा जाता है बिल? प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए उसको भेजा जाता है. So, president signature, and after receiving president's assent, the bill become an act. तो क्या प्रोसीजर हुई? हाउ प्रोसीजर ऑन एक्ट फ्रॉम द बिल. ऑर्डिनरी बिल कैसे बनेगा, एक्ट कैसे बनेगा? 3 रीडिंग होते हैं. सबसे पहला प्रेजेंटिंग बिल इन पार्लियामेंट, आइदर हाउस में उसका रीडिंग होता है, प्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव, रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रपोजल. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग होता है जिसमें वोटिंग होगा, सेक्शन वाइज डिस्कशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे. एंड थर्ड रीडिंग इज द फॉर्मल. आफ्टर that it will be signed by the head of that house, and finally it will send to the president for his or her sign, and after the signing of this it's become the law. So but if the bill is not passed in the second house, अब लोकसभा से शुरू किया और राज्यसभा में गया तो आइदर और राज्यसभा से पास हो गया पर लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया. So, but if the bill is not passed in the second house of the parliament, it again sent to the first house. लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में भेजा गया, पर राज्यसभा से वो बिल पास नहीं हुआ तो वापस वो बिल को लोकसभा में सजेशन के साथ वापस भेज दिया जाता है सुधार करने के लिए. But if the bill is not passed in the second house of the parliament, it is again sent to the first house. If the second house keep the bill for more than 6 months, it is understood that the bill is rejected. If both the house disagree or have dispute over the bill, a joint session of both house is summoned. अब देखो, but if the bill is not passed in a one house of parliament, is again sent to the first house. अगर कोई बिल पास नहीं होता है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में पास नहीं होता तो वो बिल को पर्टिकुलर प्रपोजल जिस हाउस से आई थी उसको वापस भेज दिया जाता है. ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट. देन
If the second house keeps the bill for a more than 6 months, it is understood that bill is rejected. अब दूसरा हाउस क्या करेगा? जैसे लोकसभा से एक प्रपोजल गई, लोकसभा में वो बिल पास हो गया, राज्यसभा में भेज दिया गया, तो राज्यसभा के पास दो ऑप्शन है. अगर उसको रिजेक्ट करना है तो उसके पास दो ऑप्शन है. एक तो वो बिल वापस भेज दे लोकसभा में, और लोकसभा का जो बिल है या तो उसको वापस भेज दे, या तो दे विल कीप देम विद फॉर 6 मंथ. अगर 6 महीने तक वो अपने पास बिल रख देते हैं, वो वापस नहीं भेजते पर कोई आंसर भी नहीं करते, कोई प्रोसीजर नहीं करते, 6 महीने तक अपने पास रख देते हैं, इट मीन्स बिल इज रिजेक्टेड. तो बिल को रिजेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिले, या तो यू विल सेंड बैक द बिल और keep the bill for the 6 month. In both the situation, bill will consider as a rejected. Okay, so if the both the house disagree or have the dispute over the bill, अब ऐसा भी होगा जैसे जम्मू कश्मीर के अमेंडमेंट जो नया बिल आया 370 और 35A को हटाने के वक्त, तो जॉइंट सेशन रात भर सेशन चले थे, पार्लियामेंट चली थी. तो ऐसे कोई बिल है जहां पे जॉइंट सेशन डिसअग्री है, आर्ग्यूमेंट्स है, disapprove है, so president can ask and summon for the joint session, and in this joint session of the parliament the dispute are tried to be resolved through the gaining the majority. और ऐसे समय पे joint session बुलाए जाते हैं, joint session में फिर वोटिंग होता है और मेजोरिटी वाला डिसीजन लिया जाता है. So when a bill is sent for president's signature, there are 3 options with the president. अब ये 3 रीडिंग हमें समझ में आ गया. आइदर इट इज इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा और इन द लोकसभा, सेम प्रोसीजर, प्रेजेंटिंग बिल इन पार्लियामेंट आइदर इन द लोकसभा और द लोकसभा, इसको फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, जहां पे वोटिंग सेक्शन वाइज डिस्कशन किया जाता है. एंड थर्ड इज द फॉर्मल रीडिंग, फिर साइन करके प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है इन द बेस्ट कंडीशन. आर्ग्यूमेंट होती है तो ज्वाइंट सेशन भी होते हैं एंड मेजोरिटी वाला डिसीजन लिया जाता है. नाउ व्हेन दिस बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट, ओके, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं. अब प्रेसिडेंट को जब साइन के लिए भेज दिया जाता है कोई बिल, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही बिल कायदा बनता है, इट बिकम्स द एक्ट. सो प्रेसिडेंट विल हैव द 3 ऑप्शन. नाउ लिसन, when a bill is sent to the president signature, there are 3 options with the president. ऑप्शन 3 है प्रेसिडेंट के पास. he signed the bill, thereby approve it. पहली चीज, या तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे, बिल बन गया कायदा, ये पहली चीज हुई. he keeps the bill with him, वो अपने पास बिल रख ले, और he send the bill back to the parliament for reconsideration. प्रेसिडेंट के पास ये 3 पावर है, या तो वो बिल अपने पास रखे, दूसरा रिकमेंडेशन सुधार करने के लिए बिल वापस भेजे, या तो बिल को साइन कर दे. ये तीनों चीज प्रेसिडेंट कर सकते हैं. आइदर ही कैन गिव हिज अप्रूवल, सिग्नेचर करके अप्रूवल दे सकते हैं, प्रेसिडेंट अपने पास बिल रख सकते हैं, या तो रिकमेंडेशन करके रेकमेंड करके चेंजेस के लिए बिल वापस भेज सकते हैं. सो 3 ऑप्शन लाई विद द प्रेसिडेंट. सो द बिल बिकम एन एक्ट पब्लिशिंग इन गवर्नमेंट गैजेट. गैजेट मतलब गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर. इन सिंपल टर्म, गैजेट मतलब लीगल न्यूज़पेपर ऑफ कंट्री. गवर्नमेंट का लीगल न्यूज़पेपर उसको कहा जाता है गैजेट. और जब राष्ट्रपति कोई भी बिल पे साइन करते हैं तो सबसे पहले उसको कहां पे छपवाया जाता है? गवर्नमेंट गैजेट. गवर्नमेंट गैजेट मतलब क्या? लीगल न्यूज़पेपर ऑफ कंट्री. लीगल न्यूज़पेपर ऑफ कंट्री, तो उसको गैजेटेड किया जाता है. ओके, सो द बिल बिकम an act in publishing the government gazette, there is enforcement from the date given therein. और किस दिन से, कौन से समय से बिल या तो कायदा अमल में आएगा, उसकी डेट और टाइम वहां पे मेंशन होता है. फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग,
उसके बाद गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए बिल को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट हैव 3 ऑप्शन, फर्स्ट अपना अप्रूवल साइन करके दे सकते हैं, इन सेकेंड ही कैन कीप द बिल विथ हिम, और रिकंसिलेशन के लिए रिकमेंडेशन करके वो बिल वापस भी भेज सकते हैं। एंड इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसका सबसे पहले पब्लिशिंग कहां पे होता है? गवर्नमेंट गैजेट, मतलब लीगल न्यूज़पेपर के अंदर उसको प्रकाशित किया जाता है। सो द बिल बिकम एन एक्ट पब्लिश इन गवर्नमेंट गैजेट, देन देयर इज अ एनफोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिवन देयरिन, और किस समय से, किस दिन से वो कायदा अमल में आएगा उसकी डेट वहां पे लिखी होती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Now, when any bill to amend the constitution is presented in any of the house of parliament, it has to be passed by the majority number of member of that house and by 2/3 of the member of present and voting. अब कुछ कायदे ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल आर्टिकल 370 एंड 35A। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 370 आर्टिकल एंड 35A, जम्मू कश्मीर को जो ये विशेष अधिकार देते थे, JNK के लिए कायदे थे। जम्मू एंड कश्मीर अब हमारा स्टेट नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है आज, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, विशेष राज्य के अधिकार थे। तो ये जो था वो आर्टिकल 370 35A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, टू मेक अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड, यहां पे समझने की कोशिश करो। टू मेक अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे एक आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज हो सकता है, लेजिस्लेटर भी चेक हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पे भी मॉनिटरिंग होता है और जुडिशरी पर भी मॉनिटरिंग होता है। सो व्हेन एनी बिल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड मतलब कोई भी चीज का चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करने की बात आती है, तो इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय द मेजोरिटी नंबर of that house and by 2/3 of the member present and voting. अब मेजोरिटी तो है, either it is presented in लोकसभा, चाहे वो लोकसभा में प्रेजेंट हो चाहे वो राज्यसभा में प्रेजेंट हो प्रपोजल, ठीक है। यहां पे मेजोरिटी तो चाहिए, बट साथ में प्रेजेंट जो हुए उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। प्रेजेंट मेंबर की 2/3, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास होगा तभी वो कायदा बनता है, या तो अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात थी, स्पेशल राज्य का दर्जा हटाने के लिए पूरी रात संसद चली थी, ज्वाइंट सेशन चले थे। इतिहास में 2 बार ऐसी हुआ है, और जम्मू कश्मीर के वक्त मतलब दूसरी बार ऐसा हुआ, पूरी रात संसद का काम चला था। तो पूरे संविधान के अंदर चेंज करना था, संविधान के आर्टिकल 370 एंड 35A को अमेंड करना था, चेंज करना था। सो ज्वाइंट सेशन थे एंड 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जितने मेंबर्स है, से फॉर एक कोरम में 99 है, उसकी 2/3 मेजोरिटी। सो 66 मेंबर उसको अप्रूव करने चाहिए, दिस इज कॉल्ड द 2/3 मेजोरिटी। सी यहां पे समझो, जैसे कोरम यू नो व्हाट इज अ कोरम, ओके। अब सपोज राज्यसभा में 99 मेंबर प्रेजेंट है, उसकी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 2 जा 66, 66 मेंबर की परमिशन चाहिए, वरना आप 99 100 गिनो तो 50 लमसम अगर गिनो तो 50 मेंबर की अप्रूवल चाहिए, पर यहां पे 2/3 मेजोरिटी, सो मतलब कितना 66 मेंबर की अप्रूवल, 2/3 मेंबर की अप्रूवल चाहिए वहां पे। सो इफ अ बिल
pertain to any matter related to the center or the state, it required the permission of more than half the legislative assembly of the state. कोई भी चेंज करने के लिए मोर देन द हाफ असेंबली की परमिशन भी चाहिए. सी फिर से पढ़िए. When any bill to amend the constitution in present in any of the house of parliament, it is to be passed by the majority number. कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई भी अमेंडमेंट है, संविधान के अंदर कोई चेंज करना है कोई भी हाउस के अंदर, तो मेजोरिटी और प्रेजेंट नंबर के 2/3 की वोटिंग होनी चाहिए. मेजोरिटी 50 वाली नहीं, 50% वाली नहीं, हाफ मेजोरिटी नहीं, बट 2/3 and member of that house and by 2/3 of the member present and voting. Okay, so 2/3 special majority चाहिए. If a bill pertain to any matter related to the center or the state, it's required the permission of more than half the legislative assemblies of the states. और संविधान के अंदर कोई राज्य के और या तो केंद्र के अंदर कोई सुझाव या तो बदलाव है, तो टोटल असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली के हाफ मेंबर उसके ऊपर सहमत होने चाहिए. सो दिस बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज द ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल में भी क्या था, 3 रीडिंग थे. फर्स्ट रीडिंग प्रपोजल, सेकेंड में वोटिंग एंड देन, एंड थर्ड फॉर्मल रीडिंग. सो यहां पर भी ऐसे ही होता है, बट एज इट इज अ स्पेशल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स. इतना आपको याद रखना है. नाउ प्रोसीजर सब्जेक्ट टू द मनी बिल. अब हर एक बिल मनी बिल नहीं होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मनी बिल. तो मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो कोई बिल मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल, हु विल डिसाइड? स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल डिसाइड अबाउट द मनी बिल. स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम ट्राइंग एट माई लेवल बेस्ट एंड एक्सप्लेनिंग यू लाइन बाय लाइन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मनी बिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल. अभी हमने जो बात की दैट व्हाट वी टॉक अबाउट द ऑर्डिनरी बिल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी बिल. And who will decide that the bill is a ordinary or the money bill? Speaker of the Lok Sabha. So whether the bill is money bill or not, it is decided by the Speaker of the Lok Sabha. So ये first point आपके दिमाग में बिठा दो. Who will decide? Speaker of Lok Sabha. कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, that will be decided by the Speaker of the Lok Sabha. A bill containing the recommendation of the budget or financial matter is called the money bill. Money bill मतलब financial matter है, बजट की कोई मैटर है, तो ऐसे बिल को क्या कहा जाएगा? मनी बिल. ओके, सो अ बिल कंटेनिंग द recommendation of the budget, जो बिल के अंदर recommendation है बजट के लिए या तो फाइनेंशियल मैटर, that is called the money bill. The budget of the center is presented around 28 February in the Lok Sabha mostly by the finance minister. मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है. मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है. ऑलमोस्ट फेब्रुआरी मंथ में एक ट्रेडिशन है, बजट फेब्रुआरी मंथ में ही प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर. सो हु इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारामन जी इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर. सो 28 February in the Lok Sabha center is presented around almost February month में प्रेजेंट किया जाता है by the finance minister. All the money bill are first presented in the Lok Sabha which passes through the following process. As I say, money bill हमेशा लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है. दिमाग में डाल दो, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल कोई भी हाउस में प्रेजेंट होता है, प्रपोज कर सकते हो, बट मनी बिल विल इंट्रोड्यूस प्रपोज इन द लोकसभा ओनली. समझ में आ रहा है? मनी बिल लोकसभा दिमाग में डाल दो. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? अ प्राइमरी
preliminary discussion is carried out the money bill presented in the Lok Sabha. So first reading आप उसको समझ सकते हो. The expand mentioned in the budget are discussed upon. The finance minister presents all the numerical data of the budget in the we can say in the parliament. सबसे पहले क्या होता है, रीडिंग होता है, बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन से एरिया में कितने सेक्टर में कितने पैसे, ऑल बजटरी एंड द फाइनेंशियल मैटर विल बी एक्सप्लेन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. सो व्हाट इज द स्टेप? प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोक सभा. देन द एक्सपांशन मेंशन इन द बजट आर डिस्कस अपॉन, उसके ऊपर डिस्कशन होगा. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिकल डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट. ऑल द मिनिस्टर लाइक द एग्रीकल्चर, Science, Defense, Trade, Business, Human Resources Department are put for their demand in front of the Lok Sabha, and then the voting is carried out, get the permission of demand. सबसे पहले पूरी प्रपोजल कौन रखेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर. अब अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, द मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विल गिव देयर रिक्वायरमेंट, दे विल प्रेजेंट देयर रिक्वायरमेंट. जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, वो अपने कितने जरूरत है पैसों की, बजट में कितनी रिक्वायरमेंट है, अपनी प्रपोजल रखेंगे. और ऑल डिपार्टमेंट विल गिव, कैबिनेट मिनिस्टर्स विल गिव देयर like requirement in front of the parliament. Sources of income and taxes are separately presented in the budget and both are to be separately approved. और इनकम और एक्सपेंडिचर, बजट में क्या होता है, जैसे हमारे मम्मी डैडी घर में बजट बनाते हैं, हमारी इनकम फिक्स है तो किस जगह पे कितना खर्चा होगा, इनकम कहाँ से होगी, ये मेंटेनेंस को ही बजट कहा जाता है. सो सेम वे इनकम, कंट्री की इनकम कहाँ से आएगी और खर्चा कहाँ पे करना है, दोनों की सेपरेट डिस्कशन होती है. सो सोर्सेस ऑफ इनकम, कहाँ से इनकम आएगी, टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंट, कहाँ से कौन से टैक्स बढ़ाने से घटाने से इनकम में चेंजेस होगा. सो सोर्सेस ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी सेपरेटेडली अप्रूव्ड. एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम सेपरेटली अप्रूव भी करनी पड़ती है. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर मनी बिल. The bill approved in the Lok Sabha first sent to the Rajya Sabha. As now we know, मनी बिल सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लोकसभा में. लोकसभा में एक प्रोसीजर के बाद अगर वो पास हो जाता है, देन इट विल सेंड टू द राज्यसभा. The Rajya Sabha has to return in the Lok Sabha with the necessary recommendation within the 14 days. अब मनी बिल में थोड़ा अलग चेंजेस होता है. राज्यसभा को 14 दिन के अंदर मनी बिल को वापस भेजना होता है टू द लोकसभा. 14 दिन में राज्यसभा को मनी बिल को वापस भेजना होता है. लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशन. मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, अप्रूवल हो गया, फिर उसको राज्यसभा में दिखाने के लिए, एनी सजेशन रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, सुझावों के लिए. अब राज्यसभा में या तो उसको ऐसे ही वापस भेज सकते या तो कोई रिकमेंडेशन कर सकते हैं. अब लोकसभा की ये सत्ता है कि वो रिकमेंडेशन विच इज डन बाय द राज्यसभा एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. राज्यसभा ने जो सुधार करने को बोला है, लोकसभा उसको कर भी सकती है और अगर नहीं चेंज करना चाहे तो नहीं भी करेगी. सो इन मनी बिल इन दैट ऑर्डर लोकसभा सुप्रीम होती है इन इफ वी टॉक अबाउट द मनी बिल. सो if a money bill is not returned to the Lok Sabha within the 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. Ordinary bill में क्या था, राज्यसभा अगर नहीं भेजेगी तो वो डिसअप्रूव हो जाता है. बट मनी बिल में उल्टा है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा को मनी बिल लोकसभा को वापस करना है विद द रिकमेंडेशन. अगर 14 दिन तक राज्यसभा मनी बिल को वापस नहीं करती, इसका मतलब है वो अप्रूव हो गया. इसका क्या मतलब है? बिल अप्रूव हो चुका है. सो इफ द लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. रिकमेंडेशन अगर राज्यसभा ने कुछ किया था, लोकसभा ने उसको मान लिया, तो ऐसा समझा जाएगा कि दोनों हाउस ने बिल को पास कर दिया, मनी बिल को. इन द एंड
But if the Lok Sabha reject the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by both the House of Parliament. और दूसरी सिचुएशन में भी राज्यसभा ने बिल वापस नहीं भेजा 14 दिन तक, कोई रिकमेंडेशन नहीं की, वापस नहीं भेजा, तो भी क्या मान लिया जाएगा, बिल पास हो चुका है. तो दोनों सिचुएशन में लोकसभा सुप्रीम मानी जाती है मनी बिल के अंदर. मनी बिल में क्या होगा, फाइनेंशियल मैटर, बजटरी मैटर होगी, मेजोरिटी से पास होके राज्यसभा में भेजा जाएगा. इन राज्यसभा 14 days में दे कैन गिव विद द रिकमेंडेशन, दे कैन सेंड बैक विद इन द 14 days. इफ राज्यसभा इज नॉट डूइंग सो, it is accepted and that bill is approved. So hence in the matter of money bill the Rajya Sabha has limited power. और ज्यादा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास. in the matter of money bill, सिर्फ मनी बिल के अंदर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है and राज्यसभा will have the limited power. Now after the money bill is passed by both the houses of parliament, it is sent to the president. Again president की signature के लिए भेजा जाएगा for his assent. The president has to sign the money bill. If the budget is not passed in the house, then the government has to resign. अब money bill को pass करना पड़ता है, money bill president को compulsory sign करना पड़ता है. And if money bill is not पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. मतलब मनी बिल की आप इंपॉर्टेंस समझो. मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और मनी बिल अगर लोकसभा से पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना पड़ता है. अविश्वास का मत प्रस्तावित यहां पे होता है. So apart from this, both the houses of parliament, the social, economical, political, defense and foreign matter are discussed. पार्लियामेंट के अंदर फिर सिर्फ फाइनेंस की नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मैटर रिलेटेड टू द कंट्री कंसर्न, सब चीजें वहां पे डिस्कस की जाती है. द लोकसभा मॉनिटर्स द कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब लोकसभा में क्या है, लोकसभा मॉनिटर एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव पर चेक बैलेंस लोकसभा से रखा जाता है. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड द ब्यूरोक्रेट्स, इट इज द वर्क ऑफ द इलेक्टेड मेंबर टू सी दैट द फंड ऑफ द पब्लिक आर यूटिलाइज प्रॉपरली. अब जो लोकसभा या तो पार्लियामेंट के मेंबर है, इट इज देयर ड्यूटी टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द कंट्री इन द प्रॉपर मैनर. वो कायदा तो बनाते ही है, एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी करते हैं, बट अल्टीमेटली दे ऑल आर द पब्लिक सर्वेंट. तो लोगों के लिए, देश की भलाई के लिए काम हो, देश की इनकम अच्छे से यूटिलाइज हो, दैट शुड बी टेक इन द कंसिडरेशन, दैट हैज टू बी टेक इन द कंसिडरेशन. ओके, बट वी कैन से the Lok Sabha monitor and control the working of executive, cabinet of minister and the bureaucracy. It is the work of the elected members to see that the fund of the public are utilized properly. Lok Sabha has a direct control over the use of public fund. Lok Sabha पब्लिक फंड के ऊपर लोकसभा डायरेक्ट उसको यूज कर सकती है, राज्यसभा को परमिशन लेनी पड़ती है. सो लोकसभा हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स. Without the consent of the House of the Parliament, no new taxes can levied or any improvement in the existing tax can be done. कोई भी टैक्स बढ़ाना, घटाना, चेंज करना विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन नहीं हो सकता है. पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. तो हमने जो पूरी प्रोसीजर देखी, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट, तीनों की कंसर्न के बाद ही कोई भी चेंज हो सकता है. नाउ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड. ये अंडरलाइन कर दो, कस्टोडियन कौन है, पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड. सो द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कस्टोडियन. वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. कस्टोडियन किसको माना जाता है, देख रेख संभाल करने वाला कौन है, पब्लिक फंड को ध्यान रखने वाला कौन है, उसका कस्टोडियन कौन है, पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन,
Auditor General and Attorney General under the charge of proven misbehavior of the insufficient and violence of the Constitution through the process of impeachment. अब देखो, besides this the Parliament has the power of remove the President. अब Parliament के पास power है किसको निकालने का? ना सिर्फ President, Chief Justice, Vice President, Supreme Court के Judge as well as the High Court Judge, even the Election Commission के Chief, even the Auditor General, Attorney General under the charge of proven misbehave. अगर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो सुपीरियर मेंबर्स है लाइक द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, even they can be removed with the process of impeachment. impeachment एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इवन द प्रेसिडेंट के ऊपर भी काम हो सकता है, रिमूव किए जा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. सी स्टूडेंट, अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, भले ही हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टोटली पावर उनके पास है. with different techniques, with the different process, division of the power, ultimately this shows the division of the power. So student, I think all the point line by line मैंने आपको समझाया है and it is very important. So I think this concept and the content what we have discussed today, it's clear to you all. Okay, so let's write today's homework. Very important chapter, repeatingly I am telling. इसका मतलब है आपको एग्जाम के लिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. So homework, please write your homework. Procedure of an act from bill ऑर्डिनरी बिल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ ऑर्डिनरी बिल. आई एम नॉट गिविंग यू द वर्क ऑफ द मनी बिल. मनी बिल की मैं बात नहीं कर रही हूं. प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल की बात हम कर रहे हैं. फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल. ओके, एंड so this is your homework, and very nicely, very deeply you can write all the concept which are given over here. So I think what I have explained and discussed in this lecture is completely clear to you people. In next lecture we will continue the same chapter and we will discuss about the legislature at the state level and about the president and the vice president and other topic as well. So here I am ending up this lecture. Please read the lesson. 10 बार read करो. Read and read. Try to understand. Okay? So thank you. Take care and goodbye.